Hello everyone. Today we are going to learn the fifth portion, or else you can say the last portion of chapter number 6 from grade 10 science. And in this part, fifth video, you have to learn excretory system, or else you can say excretion system. So now we'll start. So in this video we will complete excretion in humans. So first of all, what is excretion? Here is a diagram, or else you can say label diagram of your excretion system. Your excretion system contains a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. Now, so what is excretion? A process of removal of harmful metabolic waste from the body of an organism. मतलब कि excretion का मीनिंग क्या है कि आपकी बॉडी में से जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना, दैट मीन्स एक्सक्रीशन. एंड दिस आर द फोर थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन योर एक्सक्रीशन सिस्टम. एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट विच इज सिक्रेटेड, एंड दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 and water. These are the waste which is secreted by your body. Here you can see in a diagram, these are the kidneys, the left kidney and right kidney. Red one is artery and blue one is vein. Then urinary bladder and then urethra, and this one is a ureter, this thin pipe, that one is a ureter, left ureter and right ureter. Then so this one is a excretion system. Now after learning excretion system, you have to learn what is nephron. So nephron is a main functional unit of your excretion system. Here is a label diagram of nephron. Now what is nephron we will learn by theory. So there are million of long called tubules called nephron in kidney. कि आपकी किडनी के अंदर millions of number में एक लंबे लंबे tubules present होते हैं, and that tubules are known as nephrons. They are the functional unit of kidney. कि ये जो nephrons है वो आपकी किडनी के functional unit है. Now how it works? So your nephrons have one capsule or else one bag, and that is known as Bowman's capsule. This Bowman capsule have hollowed shape. Here I will mention a flow chart of the nephrons working. Bowman's capsule, which is one end and that is hollowed shape. Now that have bundle of blood capillaries, and that is known as glomerules. कि ये Bowman's capsule जो है उसके अंदर बहुत ही सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जिसको ग्लोमेरुल्स बोला जाता है. यहाँ पे आपको जो डॉट डॉट फॉर्म दिख रहा है, दे आर नथिंग एल्स बट अ ग्लोमेरुल्स. नाउ द वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुल्स आर अटैच्ड टू अ रीनल आर्टरी. कि ये जो चीज़ है, और एज यू कैन से ग्लोमेरुल और बाउमेंस कैप्सूल, उसका एक एंड रीनल आर्टरी के साथ मिक्स होता है. अब रीनल आर्टरी के साथ मिक्स होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में से जितना भी ब्लड है जो प्यूरिफाई करना है, वो ब्लड रीनल आर्टरी से, मतलब यहाँ से क्या करेगा, इस कैप्सूल के अंदर एंटर करेगा, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर. यहाँ से फिर वो प्रोसेसिंग होगी, एक्स्ट्रा वाटर वगैरह जो भी है, एक्स्ट्रा सॉल्ट मटेरियल, वाटर, जितना भी मिनरल्स, ये सारे एब्जॉर्ब होंगे. एंड एट द एंड ये आपके कलेक्टिंग डग में क्या होगा, वापस से रीअब्जॉर्ब, आगे जितना भी रीअब्जॉर्ब हो गया वहाँ से फिर जितना बचा कुचा है वो आपके कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, और वहाँ से फिर आपके यूरेथ्रा में कलेक्ट होगा और फिर वहाँ से इजेक्ट आउट हो जाएगा. देन सो बाउमेंस कैप्सूल that have glomerules that are blood capillaries attached with renal arteries. From there they have a tubular structure, and at the end they are going to collecting duct. ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो के साथ एक्सप्लेन करूँगी, बट ये अभी एक आप पूरा थियरी पोर्शन समझ लो एक बार. As blood flows through the glomerulus, water, salts and waste diffuse into the Bowman's capsule. This liquid then passes into the PCT and the loop of Henle, where water and important salts are absorbed back into the blood vessel. Only the waste material like urea and some water molecules proceed into the DCT, where more water may get absorbed into the interstitial fluid. This liquid formed is the urine, which is released into the collecting duct.
This finally trickles through the kidney into the ureter, which helps the passage of urine into the urinary bladder. After a while, the urine can be excreted from the bladder. डन। सो आपने ये जो वीडियो देखा वो नेफ्रॉन का वर्किंग था कि नेफ्रॉन किस तरीके से वर्क करता है, आपकी बॉडी के अंदर यूरिन किस तरीके से फॉर्म होता है। अब ये देखने के बाद हम उसी चीज़ को थियरी पोर्शन में कंप्लीट करेंगे कि एक्सीटरी प्रोसेस रियली में होती क्या है। सो उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती है, एक तो रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड यूरिन फॉर्मेशन होता है। नाउ reabsorption is a process by which filtrate moves to the tubules where water, glucose, amino acids are reabsorbed by the surrounding capillaries and there will be a later return to blood। कि reabsorption में क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर जितना भी वाटर है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, कि वो जो वेस्ट के अंदर गलती से भी चला गया हो तो वो क्या होगा, उस वेस्ट में से वापस आपकी ब्लड कैपिलरीज क्या कर लेगी, उसको अब्जॉर्ब कर लेगी और वो चीज़ें अब्जॉर्ब होके वापस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी और वेस्ट उसमें से अलग होके क्या हो जाएगा, कलेक्टिव डक्ट में अलग हो जाएगा। दैट आर द रीअब्जॉर्प्शन। नाउ वी विल लर्न यूरिन फॉर्मेशन, दैट हाउ यूरिन फॉर्म्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट मटेरियल मतलब रीअब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड निकल गया। उसके बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल बचा है वो वेस्ट मटेरियल की जो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता वो वाले वेस्ट मटेरियल में से क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट ऐड हो जाएगा और उसमें से यूरिन बन जाएगा और ये जो यूरिन बना है वो कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब वहाँ से वो जो यूरिन है उसमें वाटर ऐड होगा और उस वाटर में मतलब वाटर फ्लुएंसी हो जाएगी उसकी, वाटर के साथ मिक्सअप होके और वहाँ से वो कहाँ पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा। अब आपकी यूरिनरी ब्लैडर की जितनी कैपेसिटी होगी उतने अमाउंट तक वो क्या करेगा, यूरिन स्टोर कर पाएगा। अब जैसे ही उस ब्लैडर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी आपको क्या यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी में से क्या हो जाएगा, यूरिन इजेक्ट आउट हो जाएगा। सो दिस वन इज अ urine formation process. So after the learning the process of urine formation and a work of nephron, now we have to learn the function of kidney and then we have to learn how kidney failures occurs. So first of all we have to learn osmoregulation and then kidney failure. So what is osmoregulation? So it is a control of water content and mineral salt of the बॉडी के। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है कि आपकी बॉडी के वाटर कंटेंट को एंड सॉल्ट्स को जो कंट्रोल करने का काम है, दैट इज डन बाय ऑस्मोरेगुलेशन। नाउ किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन इन अवर बॉडी। और आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का काम कौन करता है, किडनी करती है। सो ऑस्मोरेगुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी। तो ये था किडनी का फंक्शन। नाउ व्हाट इज अ किडनी फेलियर? किडनी फेलियर कैन बी हैपन थ्रू इन्फेक्शन, इंजरी एंड रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। कि किडनी फेलियर कब होता है, तो किडनी फेलियर होने के दो तीन चीज़ें, या तो आपकी बॉडी को कोई इन्फेक्शन हो जाए या तो फिर आपको कोई इंजरी हो जाए कि जो एक्सिटरी सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट कर गई हो, या तो फिर आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो इरेस्ट्रिक्ट हो जाए कि जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना हो पाए। सो इन सब चीज़ों की वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। इट कैन बी ट्रीटेड थ्रू अ ट्रांसपोर्ट और अ डायलिसिस सिस्टम। अगर आपको इसको ट्रीट कर तो ट्रांसप्लांट योर किडनी और एल्स यू हैव टू डू डायलिसिस टाइम टू टाइम। नाउ डायलिसिस कैन बी डन बाय आर्टिफिशियल किडनी, कि अगर आपको डायलिसिस ही करवाना हो तो आप आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू भी डायलिसिस की प्रोसेस करवा सकते हो। तो ये था किडनी फंक्शन एंड किडनी फेलियर। नाउ एज वी ऑल नो we learn kidney failure, and that kidney failure we have to use artificial kidney for the dialysis of the blood. So what is the principle of dialysis that we have to learn? So dialysis होता है dialysis machine के through. That dialysis machine have a long cellulose tube. That cellulose tubes are coiled in a tank and connecting dialyzing solution. कि ये जो dialysis का मशीन है उनके अंदर सेल्यूलोज की लंबी ट्यूब्स होगी और उन ट्यूब्स के अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब उन सॉल्यूशन में से क्या होगा कि वो जो सॉल्यूशन है डायलिसिस का वो आर्टरी ब्लड फ्लो इनटू अ मशीन, की वहाँ से क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी में से जो भी ब्लड है जिसको आपको प्योरीफाई करना है वो ब्लड आर्टरी के थ्रू क्या होगा उस मशीन के अंदर
एंटर करेगा। अब वहाँ से सेल्यूलोज ट्यूब्स फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स द वेस्ट, कि वहाँ से क्या होगा, एक बार आपका ब्लड मशीन में एंटर कर गया तो वहाँ से वो जो सेल्यूलोज वाली ट्यूब्स थी जिनके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा हुआ है, वो क्या करेगा, आपके ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट कर देगा और उसमें से वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर टू द ब्लड, कि इसमें से क्या हो जाएगा, जितना भी वाटर कंटेन है, ग्लूकोज कंटेन है, सॉल्ट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ब्लड के साथ ऐसे ही मिक्स रहेगी। बट इनके अलावा का जितना एक्स्ट्रा वेस्ट है, यूरिक एसिड का वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सारा वेस्ट क्या हो जाएगा, उसमें से अलग हो जाएगा। और जो प्योर ब्लड था वो प्योर ब्लड वेन के थ्रू वापस से क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर इजेक्ट हो जाएगा। जहाँ से भी अगर आपके आर्म से निकाला है तो एक आर्म पे आपको क्या किया होगा, एक आर्म की आर्टरी के अंदर आपको नॉक लगाई होगी, सुई लगाई होगी, कि वहाँ से क्या होगा, आपका ब्लड निकलेगा, मशीन के अंदर जाएगा, मशीन के अंदर प्रोसेस होगी और वहाँ से फिर वो नीडल आपको दूसरे हाथ में लगाई होगी। तो जो प्योर ब्लड है वो दूसरे हाथ की वेन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर वापस चला जाएगा एंड योर ब्लड गेट प्योर्ड विदाउट द नेचुरल किडनी। दिस टाइप ऑफ dialysis is known as artificial dialysis and it can be easily available in most of the hospitals. Now after completing excretion in animal, now we have to complete excretion system in plant, that how plant excretion system works. Now we will talk about the excretion in plants, that how plant excrete. So plant waste are stored in a cellular vacuoles. As we all know that plant cell have a large amount of vacuoles present in them. So these vacuoles store the waste product of the plant. Now that product can be gaseous also and it can be a liquid waste also. So gaseous waste such as CO2 are removed through the stomata pore at the time of respiration or else at the time of photosynthesis. कि ये जो सारी चीज़ें ऑक्सीजन CO2 एंड O2 का जो इनपुट आउटपुट जितना भी है, इंजेक्शन और एक्सक्रीजन, ये सारा गैसियस वेस्ट के थ्रू, स्टोमाटा पोर के थ्रू हो जाता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड वेस्ट, इन केस ऑफ वाटर, तो वाटर आर रिमूव्ड थ्रू द ट्रांसपिरेशन सिस्टम एंड it will also in stomata. Now other waste such as dead cells of leaves and etc are discarded through the shedding of लीव्स की जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, कि जो लीव्स के ऊपर एक्स्ट्रा डेड सेल्स है वो किस तरीके से रिलीज होंगे, वो किस तरीके से डिस्कार्ड होंगे. सो दे कैन बी डिस्कार्डेड विद द हेल्प ऑफ शेडिंग ऑफ लीव्स. नाउ some extra things which are generated by plant like resin, gum, oils, these all are stored in a oiled xylem. कि आप बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर हम देखते हैं कि एक स्टिकी लिक्विड जनरेट होता है, उनमें से ही रेजिन्स मिलते हैं, हमें गम उसमें से मिलता है, रबर्स उसमें से मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें जाइलम के अंदर स्टोर होती है और वहाँ से फिर एक्सक्रीट हो जाती है और उनमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकती है. नाउ फ्यू अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम नोड्स इनटू द सॉइल. और इसके अलावा जितना भी मटेरियल्स बचा है वो क्या होगा, प्लांट की जितनी भी नोड्स होती है कि जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके, उस रूट नोड्यूल्स के थ्रू सॉइल के अंदर रिमूव हो जाता है. सो दिस आर द एक्सक्रीजन इन प्लांट. So here our excretion process is also complete, or else you can say your chapter number 6 is also complete. So if you have any doubt, then just note down your doubt and refer the video for your betterment. Thank you everyone. Have a good day.